Okay, first of all, very, very good evening to everyone. How are you all? Please let me know if my voice is audible. Voice is crystal clear so far. Okay, good, great, sir. So let's begin with our weekend, analysis on. So today is basically, the session that we are conducting today. It is meant for giving you, first of all, analysis of Nifty and Bank Nifty. Then we will also be, giving you one simple strategy using which you can make, profits from Bank Nifty. You will be learning a strategy, and then there will be Q&A session for the upcoming course which we are about to start, that is our market profile course. So this is our course which is starting from first week of January, and there are so many things that you'll be learning in this course, and features of it will also be explained to all of you, right? So all of you, how many of you are attending this webinar for the first time? Let me know, guys. And where are you from? I want to know, what type of trading is more comfortable to you. Is it intraday trading which is more comfortable to you, or is it positional trading which is more comfortable to you? Or let me know your fears also. How many of you are feared of doing intraday trading? आप में से कितने लोगों को intraday trading से डर लगता है, या आप नहीं करना चाहते हैं, या क्या दिक्कत है? देखो, because my strength, if you talk about me, I am an intraday trader, and I have been trading in stock market from past more than 10 years. And initially it was definitely very difficult for me to do consistent earnings by doing intraday trading, but gradually I gained my strength in intraday trading, and finally I started earning good from doing intraday trades, especially in Nifty and Bank Nifty, right? So that is my strength area, wherein I do every single day. I look forward for trading opportunities in Nifty and Bank Nifty. I do trade in futures and options also, stock futures and options also, but my frequency of trading in stock futures and options is comparatively lesser. The frequency of trading of mine earlier, during pandemic times, I used to do very frequent trading in futures and stock futures and options, but gradually I reduced my trading, and now I have kept myself limited only to Nifty and Bank Nifty. But it's not that I don't want to do. It is just the out of my preference only, because if you can make money from index options and consistently, then why not simply keep on following that? So it is all about choice. What about you guys? I want to know more about you also. आप अपने बारे में बता सकते हैं. You can write down in questions panel. In your go to webinar window, there is a proper panel written which is questions. You can write down all your questions there. If you are logged in from your mobile device, तो आप अपने वहां पर आपको एक क्वेश्चंस का फॉर्मेट दिख रहा होगा, वहां पर आप लिख सकते हैं अपने बारे में, that which type of trading is most comfortable, और आप क्या जानना चाहते हैं आपके बारे में, ट्रेडिंग में आपको कहां पर डिफिकल्टी आती है. ऑल ऑफ दैट you can write down, and I'll definitely try to guide you all today in live session that we are conducting. Okay, let me know, guys. Till then, rest of the people are joining. तब तक बाकी के लोग ज्वाइन करते हैं, तब तक आप अपने बारे में जो भी शेयर करना चाहते हैं, you can share. So till then, आप सब लोग जो भी अपने बारे में लिखना चाहें लिख सकते हैं. तब तक I'll begin with doing analysis of Nifty and Bank Nifty, and then accordingly we can decide what kind of trade setup we should be following for the next trading session. Now, looking into first I'll do the analysis of Bank Nifty, and we will have a look into daily chart of Bank Nifty. सबसे पहले Bank Nifty का daily chart हम देखते हैं. Now for Bank Nifty, अगर हम इस साल अगर प्राइस का मूवमेंट, एंड ऑल्सो लेट मी नो गाइज, किस लैंग्वेज में आप सुनना चाहेंगे. यू वांट टू लिसन इन इंग्लिश और यू वांट टू लिसन इन हिंदी? विच लैंग्वेज इज मोर प्रेफरेबल टू यू? किस लैंग्वेज में आप सुनना चाहेंगे? लेट मी नो. हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर यू वांट. Okay, Vinay is saying both Hindi or English. Anyone else? English is fine, and both are fine. Okay, so I want one more thing from all of you. At any point of time, if you are not able to understand what I'm trying to speak, then you can also ask that.
राइट आप वो चीज पूछ सकते हैं कहीं पर भी आपको, अगर मैं कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा हूं एनालिसिस में और आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन स्टिल आस्क एंड आई विल डेफिनेटली क्लियर ऑल योर डाउट्स ऑन द सेम. नाउ लेट्स कम बैक टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी अगर डेली चार्ट में हम देखेंगे, इफ वी लुक इनटू दिस डेली चार्ट, सो स्टार्टिंग फ्रॉम March onwards, there was a complete sideways movement that took place in Bank Nifty, and this sideways movement basically defined the bottom of Bank Nifty, right? What was the bottom? It was basically this bottom of around 34,300 to 34,000 level roughly. Right. So this was the level which was the defined bottom of Bank Nifty. Why this was happening? Because there was some unusual buying that took place in Bank Nifty on this particular day, which was on which was I think in 21st of May 2021. That's where a big set of buying took place. After that, prices retested this area and then again moved up, then again retested, then again moved up. This time prices next time started making higher lows and then finally gave the breakout on upside, right? So this definitely 21st of May is definitely an important reference candle for us. And if you look into further historic data of Bank Nifty, then you'll be finding that prices यहाँ पर भी पहले resistance लगातार ले रहे थे. So definitely this candle is carrying a very high importance for us. अगर मैं इस candle के high और low को अगर मैं mark करूंगा, then the important area that will come out, you will be finding that अभी भी अगर प्राइस इसी एरिया में अगर हम देखेंगे तो रफली इसी एरिया के आसपास ये है वो एरिया, यहीं पर बार बार प्राइस रुकावट दे रहे हैं. आई होप आपको यहां पर प्राइस की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही हो, right? Is it getting clear to everyone? Earlier this area was getting rejection. Once the prices were getting rejection, but still on the lower level there was higher low formation that was taking place, and then again prices, when they gave a fixed breakout on upper area, prices tested the average price of this candle and then again moved up, then again took support, again moved up, and finally gave the breakout on upside. And then later on, gradually we saw a swift rally on the upside gradually with time in the month of October, and prices were finally able to reach up till 41,800. I still remember this was 25th of October and it was I think Friday time or maybe Monday trading day, where I think it was Friday only, I guess. So after that prices finally started running sideways, and then by month end there was a big fall that took place in Bank Nifty, right? And after this fall has appeared, prices never went up, they just kept on rallying on the downside only. And finally when the prices reached down this rally, there was again a sideways movement that took place in the prices. ये रैली था इस रैली के स्टार्ट का पोर्शन, राइट? जहां पर प्राइसेस ने एक बार हिट किया, सपोर्ट लिया, दोबारा से ऊपर गए, फिर दोबारा से इस एरिया को जो पहले अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता था, वो एरिया अब रेजिस्टेंस की तरह यहां पर एक्ट करने लगा. एंड देन फाइनली प्राइसेस again went down, and in last Monday or something, in the last week, I think this is what happened. A big candle on the downside appeared. It was crystal clear. Next day Bank Nifty had to give a movement on the downside only, and finally prices gave a downside movement. After reaching back till 34,000, prices took support one more time, retested, and then again started giving a rally back on upper area and started filling this gap area, right? Up just very simple analysis is not difficult to do. All you have to do is just simply read what prices are telling you, right? So यहाँ पर अभी prices ने आपको क्या बताया, इस gap area के अंदर यहाँ पर prices दोबारा से enter किया, और enter करने के बाद what has happened, prices have again taken rejection from here. The moment prices were about to break this low, Friday आपके लिए best दिन था to again look forward for shorting Bank Nifty, because Bank Nifty will definitely be moving on the downside only. Because जैसे ही इस लो को Bank Nifty ने पहले 5 मिनट में ब्रेक किया, इसी कैंडल के नीचे अगर आप लो के नीचे अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते, डेफिनेटली आपके लिए विन विन सिचुएशन होती, क्योंकि आपका रिस्क यहाँ पर था सिमिलर लिमिटेड टू दिस मच, और आपका रिवॉर्ड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विद इन 10 मिनट 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका अचीव हो गया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में. नाउ व्हाट लाइज अहेड, आगे के दिनों में अब हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नाउ उसके लिए अगर हम देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम में इतना तो हमें प्राइस से क्लियर है that again prices are taking rejection from this gap area. That means this is definitely going to be a
मेजर रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी फॉर द कमिंग डेज। जब तक इनकमिंग डिमांड बहुत ज्यादा नहीं होती है तब तक ये एरिया ब्रेक शायद नहीं होगा, राइट। दूसरी चीज है, नीचे के एंड में अभी हमारे पास और भी फर्दर एरिया है जिसमें बैंक निफ्टी एक्सप्लोर कर सकता है, जिसमें पहला एरिया बनता है सपोर्ट का 34,000 का एरिया। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर सपोर्ट एरियाज wherein prices have shown historically to be taking support. Even if prices break this area, हमने यहां पर पीछे से कौन सा एरिया डिफाइन किया हुआ है, दैट इज द लो ऑफ दिस कैंडल। हमें चाहिए 36,500 33,500 के नीचे क्लोजिंग हमें चाहिए रफली। कोई भी दिन अगर 33,500 के नीचे क्लोजिंग देता है उसके बाद आप बहुत बड़ी रैली डाउन साइड में फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जो मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है वो यही है अभी तक कि बैंक निफ्टी अगर 34,000 लेवल के आसपास आता है और यहां से कहीं से इवन इफ इट गोज डाउन, आई विल बी लुकिंग फॉर ऑल द बाइंग अपॉर्चुनिटीज ऑन द लोअर लेवल। ये मैं लोअर लेवल में आने वाले हफ्ते में बाइंग का अपॉर्चुनिटीज जरूर ढूंढूंगा। अगर प्राइस नीचे आता है, मुझे रिवर्सल कॉन्फर्मेशन दिखता है, डेफिनेटली मैं अपसाइड में एक्सपेक्ट करूंगा प्राइसेस को फिर दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए हायर प्राइसेस। देखिए बैंक निफ्टी का एक सिंपल सा रूल होता है, बैंक निफ्टी क्या, ये कोई भी स्टॉक का आप लगा लीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक एक सिंगल डायरेक्शन में हमेशा चलता रहेगा, राइट। if at all it is running in an up rally, there will be up move, there will be sideways move, then again up move, then again retracement, up move, retracement, and then finally अगर ऐसी लंबी रैली अगर आपको दिखाई दे जाए तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा पीक ऑफ बाइंग एरिया दिखाई देगा, जैसे कि यहां पर आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दिया पीक ऑफ बाइंग दैट हैपेंड इन बैंक निफ्टी ऑन दिस पर्टिकुलर डे। इस पर्टिकुलर डे में बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा पीक ऑफ बाइंग आया एंड फाइनली उसके बाद प्राइस ऊपर मुड़ के देखा ही नहीं, फाइनली नीचे ही गिरता गया। सिमिलरली इस टाइप का पीक ऑफ बाइंग आप हिस्टोरिकली आपको डिफाइन करना हो तो आप डिफाइन कर सकते हैं। यू लुक इनटू दिस एरिया, इस एरिया को अगर आप देखेंगे यहां पर एक एक दिन का एवरेज डेली कैंडल का हाई और लो अगर आप देखेंगे 30,580 से लेकर 31,900, इतना बड़ा रेंज, राइट। दैट इज 3500 से लेकर 32,000 रफली यू कैन से, राइट। 2500 पॉइंट का रेंज बैंक निफ्टी का इस एरिया में बना था, पर जैसे ही इस रेंज को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया उसके बाद बैंक निफ्टी ने वापस मुड़ के नहीं देखा, वापस ऊपर ही चलता रहा, राइट। हर डिप में यहां पर जहां पर भी कोई भी शेडो बनता था वहां से फिर दोबारा से बैंक निफ्टी ऊपर गया, फिर नीचे गिरता था तो वहीं से दोबारा से पुट राइटर्स वापस से ऊपर बैंक निफ्टी को लगातार लेके जाते रहे। और भी हिस्टोरिकल एरिया आप कुछ भी देखेंगे वहां पर आपको इस टाइप का जरूर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं चाहूं तो यहां पर बैंक निफ्टी का थोड़ा और एरिया बढ़ा देता हूं फॉर मोर देन लेट्स से 2000 डेज का डेटा अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो 2000 दिन के डेटा के हिसाब से आपको ऐसी बड़ी बड़ी पीक ऑफ बाइंग कैंडल आपको हमेशा दिखाई देंगी, जस्ट लाइक दिस वन दैट हैपेंड ऑन इन द मंथ ऑफ सितंबर। सिमिलरली और भी बड़ी पीक ऑफ बाइंग अगर आप कैंडल देखेंगे, इट वाज दिस not this area, it was this candle, right। this was one upper circuit and lower circuit hitter candle, जिसके बाद बैंक निफ्टी ने इस एरिया तक मल्टीपल डेज तक रेजिस्टेंस लेते रहे। एक बार इस कैंडल के नीचे ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी जब भी इस एरिया को रीटेस्ट करने आया रिजेक्शन, सेकंड टाइम करने आया फिर से रिजेक्शन, थर्ड टाइम आया अगेन रिजेक्शन, एंड देन फाइनली ग्रेजुअली प्राइसेस ने इसको फिर से फिलअप करना शुरू कर दिया, राइट। और फाइनली हमें बैंक निफ्टी में रैली अपसाइड में देखने को मिली। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी भी कोई भी रैली का एंड होना होता है तो आपको हमेशा एक बहुत बड़ा पीक ऑफ बाइंग या पीक ऑफ सेलिंग दिखाई देगा। मोर ओवर आप अगर बजट को देखेंगे 2021 का जो बजट डे था वो ये था, राइट। 1 फरवरी 2021, राइट। सो अगर उसके हिसाब से आप देखेंगे तो यहां पर 33,279 का इसका क्लोजिंग प्राइस है और ओपनिंग प्राइस है इसका 3963। ना कोई भी एनुअल चार्ट्स में आप देखेंगे आपको हमेशा देखने को मिलेगा उसके हिसाब से रिटर्न कैलकुलेशन आपको हमेशा मिलेगा बैंक निफ्टी का। सो आइडियली अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी अगर इस लोअर एरिया में कहीं पर भी आता है मैं डेफिनेटली बाइंग का अपॉर्चुनिटी जरूर देखूंगा। और अभी तक डेटा की अगर बात करें बैंक निफ्टी के तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी में अभी भी बियरिशनेस है। वो बियरिशनेस कैसे है, क्योंकि प्राइस एक्शन अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी में एक दिन पहले यहां पर लगातार प्राइस नीचे गिरे हैं और इसमें
शॉर्ट्स की पोजीशन बहुत ज्यादा थी, शॉर्ट्स वर very high, right? After that, prices started again doing the retracement back on upper end. इनफैक्ट डे के ओपनिंग प्राइस तक भी प्राइस पहुंच गए, लेकिन इस बाइंग में वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं था. दैट मींस अगर बैंक निफ्टी दोबारा से कल या मंडे के दिन में अगर दोबारा से गिरावट दिखाना शुरू करता है, डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइसेस को फिर दोबारा से नीचे मूवमेंट करने के लिए. अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की. यानी कि अगर हमें बैंक निफ्टी को अगर शॉर्ट करना हो, इफ यू वांट टू गो शॉर्ट इन बैंक निफ्टी, then which area can highly likely give us the first entry? I will say, as per simple price action, this is what we can say, that prices can highly likely take, यहां पर अगर हम देखेंगे अपर एरिया अगर हम डिफाइन करें, then this is the upper area for bank nifty, right, which we can define as the first area wherein prices can highly likely take rejection, right? एक तो ये टॉप बन सकता है, या फिर नहीं, आई एम सॉरी, it is not going to be, yes, it is going to be this one, the first morning push, and second area will be this one, right? So ये कुछ एरियाज हैं रेजिस्टेंस के. नाउ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पॉसिबिलिटी एनी डायरेक्शन, राइट? वी हैव टू कीप आवर माइंड ओपन फॉर एवरीथिंग, राइट? फर्स्ट पुश कैन ऑल्सो बी लाइक दिस, दैट सबसे पहले बैंक निफ्टी ऊपर जाए, लेकिन यहां पर अगर रेजिस्टेंस दोबारा से बैंक निफ्टी को मिलता है तो हम दोबारा से बैंक निफ्टी को नीचे की डायरेक्शन में आने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी चाहिए, राइट? हमें उसके बाद बैंक निफ्टी की डिमांड देखना चाहिए. क्या बैंक निफ्टी में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है? अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो हमें इस एरिया में ब्रेक करने का फिर वेट करना चाहिए. अगर इसको ब्रेक कर देता है, डेफिनेटली हम फर्दर हायर टारगेट्स बैंक निफ्टी में अचीव करने का सोच सकते हैं, राइट? दूसरी चीज है, अगर इस एरिया से रेजिस्टेंस ले लेता है, मोरोलेस अगर यहीं से कहीं से साइडवेज बन के फाइनली नीचे गिरना शुरू करता है, डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूवमेंट ऑन द डाउन साइड. एंड कौन सा सपोर्ट एरिया बनेगा? पहला सपोर्ट एरिया हमारा है 34,850 से लेकर 800 का एरिया. यहाँ पर प्राइसेस को अगर आप सिंपली अगर पढ़ना चाहें, ये एक बहुत बड़ा कैंडल था जिसमें अच्छा सेलिंग वॉल्यूम आया था, राइट? उसके बाद प्राइसेस इसी कैंडल की बॉडी के अंदर काफी देर तक ट्रेड किया, इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन फिर दोबारा से प्राइसेस को रिजेक्शन मिला. फाइनली प्राइसेस ने इसको ब्रेक तो करा, बट लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया और फिर दोबारा से ऊपर मूव कर गए, राइट? ब्रेकआउट तो है बट लो वॉल्यूम के साथ है यहां पर ब्रेकआउट, राइट? सो अब अगर हमें कल ट्रेड लेना है, डेफिनेटली हम ले सकते हैं. अगर 34,800 के लो को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है वॉल्यूम के साथ, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहला एरिया जहां पर बैंक निफ्टी रीटेस्ट कर सके वो होगा पिछले दिन का रिजेक्शन एरिया, यानी कि 34,650 से लेकर 600 तक का एरिया. ये हमारा होगा सपोर्ट नंबर 1, राइट? दिस यू कैन से, यू कैन कंसिडर दिस एरिया एज द फर्स्ट. इनफैक्ट इसको आप S1 बोलिए और इसको आप S2 बोलिए, राइट? सो इंट्राडे लेवल में अगर आप बात करें, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ. कोई भी प्राइस एक्शन एनालिसिस अगर आपको सिंपल सी आती है, उससे भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, स्पेशली मेंट फॉर इंट्राडे, राइट? प्रॉब्लम कहां आती है? हम लेंगे एंट्री यहां पर और फिर उसके बाद होप करेंगे, यहां पर हमने शॉर्ट कर दिया, बैंक निफ्टी बहुत ऊपर चला गया, चलो यहां पर शॉर्ट कर देते हैं. प्रॉब्लम आती है यहां पर, आपको दिखा अरे बैंक निफ्टी अब पूरी तरह से रिट्रेसमेंट करके इतना ऊपर भाग गया, चलो बाय कर लेते हैं. वहां से आपको जो लॉस लगना शुरू होते हैं वो आपके कैपिटल को इरोड करके एकदम नील पहुंचा देते हैं, राइट? सो एट द डे एंड व्हाट यू हैव टू लुक फॉर, यू हैव टू लुक फॉर योर एंट्री पॉइंट्स. आपको एंट्री पॉइंट्स आपके ढूंढने हैं. वो एंट्री पॉइंट्स आपको मिल सकता है एक तो यहां पर, जिसको हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ट्रेडिंग. सिमिलरली सेकंड एरिया कैन बी दिस सपोर्ट एरिया, यू कैन कॉल इट एज अ सपोर्ट ट्रेडिंग. सिमिलरली अब यहां पर सपोर्ट पर प्राइस आता है तो आपके पास ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन क्या है? या तो आप इस सपोर्ट को ब्रेक करें वॉल्यूम के साथ, तब आप शॉर्टिंग का पोजीशन बनाओ, और या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि लेट्स से दैट दिस इज द सपोर्ट जोन, मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं. लेट्स से प्राइसेस ने इसको यहां पर ब्रेक करा. ब्रेक करने का मतलब ये थोड़ी है कि प्राइस यहां से लगातार नीचे गिरता जाएगा. देयर कैन बी मल्टीपल सिनेरियोज दैट आर पॉसिबल. उसमें से कोई एक सिनेरियो आपको चूज करना है. एंड द सेफेस्ट सिनेरियो फॉर यू टू गेट टू गेट प्रॉफिट विल बी दैट बैंक निफ्टी से हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद इसे रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद जैसे ही प्राइस नया लो बनाएगा
तब आप ट्रेड ले लो, राइट। यहां पर आप नया लो बनाने पर ट्रेड ले लो, डेफिनेटली यू विल बी मेकिंग सम मनी। और स्टॉप लॉस जो होगा आपका, ये लास्ट रेफरेंस रिवर्सल पॉइंट जो था, इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये है सबसे छोटा ट्रेडिंग। नाउ जरूरी नहीं है आपको ये हमेशा ही इसी टाइप का ट्रेड लेना है, बट अगर आप सिर्फ एक ट्रेड सिस्टम को, अगर सेटअप को फॉलो करेंगे, उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। हालांकि आपकी एंट्रीज बहुत कम हो जाएंगी मार्केट की, लेकिन पोटेंशियल प्रॉफिट का आपका बहुत बढ़ जाएगा। देखिए, ब्रेकआउट बहुत अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। एक तरीका ये हो गया, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट इन अ सिंपल पेंट, ताकि आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ब्रेकआउट आने को बहुत सारे तरीके के ब्रेकआउट आ सकते हैं। पहला ब्रेकआउट जैसे हम अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, लेट्स से ये एक हमारा लेवल है, इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक करा और उसके बाद ऊपर ही चलता गया, राइट, कभी रीटेस्ट करने नहीं आया। सो आई कैन कॉल इट एज ब्रेक एंड रन अवे। इफ यू आर लुकिंग फॉर टेकिंग, बहुत सारे मैक्सिमम ट्रेडर्स जो पैसा लूज करते हैं वो ब्रेक और रनअवे टाइप की ट्रेडिंग में लूज करते हैं मैक्सिमम। इनफैक्ट मेरा भी इसमें बहुत पैसा बहुत बार डूबा है ब्रेक एंड रनअवे में, राइट। बिकॉज व्हाट हैपेंस, once the prices have broken, they have ran away, and many a times it has happened after that reaching at the top. Let's say I have taken entry at this point, prices will be again reducing down and finally giving a big dip on the downside, and this will give me bigger set of losses. So you have to think about it, right? कोई भी ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने की जरूरत है। नाउ ब्रेकआउट एक और टाइप का हो सकता है, दैट प्राइसेस हैव ब्रोकन, they have taken support roughly around the area. It is not exactly pinpointedly यहीं पर सपोर्ट लेना चाहिए, इसी एरिया के आसपास कहीं सपोर्ट, या तो हो सकता है यहां से कहीं से थोड़ा सा नीचे से, या फिर थोड़ा सा ऊपर से यहां से कहीं से, मतलब रफली यू आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहां से सपोर्ट लेकर रिवर्सल ले, तब आपको बेसिकली यहां पर पॉइंट मार्क करना है। कोई भी कैंडल जब इस कैंडल के ऊपर जाएगी तब आप अपना लीजिए, एंट्री लीजिए, और इस टाइम पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा दैट इज लास्ट रिवर्सल पॉइंट। और जितना आपका ये रिस्क ले रहे हैं, इस रिस्क के हिसाब से आप अपना रिवॉर्ड लीजिए, राइट। सो दिस इज सेकंड टाइप ऑफ ब्रेकआउट दैट यू कैन think about deploying, you know, in the market, right? This is actually most preferable type of breakout which I recommend to everyone, right? बिकॉज इस टाइप के ब्रेकआउट के अंदर फेक आउट भी हो सकता है, इस टाइप के ब्रेकआउट के अंदर यू नो आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। सो यू हैव टू डिफाइन, मेनी अ टाइम्स यू विल बी फाइंडिंग दैट कोई भी कैंडल है वो इतनी बड़ी कैंडल ब्रेकआउट की बनी है कि अब आपके पास रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा है। सो यू कैन डिफाइन योर रिस्क, राइट, एज पर योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। सो इसी हिसाब से आप ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली यू नो दिस सेकंड टाइप ऑफ सेटअप विल डेफिनेटली गिव यू comparatively consistent and much better profitability, right? I hope this point is clear to everyone. So यहां पर भी आपके पास choices हैं। अगर यहां पर prices ने break करा है, एनालाइज करिए वॉल्यूम को कि ब्रेकआउट का बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है या नहीं आया है, एंड अगर आ गया है तो उसके बाद क्या प्राइस रीटेस्ट करने आ रहा है। यस, इफ द प्राइसेस आर कमिंग टू रीटेस्ट, रीटेस्टिंग के टाइम पर देयर आर टू सिनेरियोज दैट आर पॉसिबल, राइट। लेट्स से प्राइसेस हैव गिवन अ ब्रेकआउट, then prices are coming back to the upper area. There are two scenarios, या तो प्राइस यहां से कंप्लीट रिवर्सल दे देंगे, या फिर उसके बाद यहीं से रेजिस्टेंस लेके अगेन वापस से नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहां से फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, या फिर दोबारा से नीचे साइडवेज ऐसे ही ट्रेडिंग करता रहेगा, या फिर अगेन फाइनली नीचे मूवमेंट दे देगा। सो वी हैव टू बी ओपन विद ऑल द पॉसिबल सिनेरियोज ऑफ मार्केट, राइट। हमें मार्केट के हर पॉसिबल सिनेरियो के साथ ओपन रखना पड़ता है अपना माइंड को। और लेकिन एक बार अगर आपने ट्रेड में एंट्री ले ली, तब आपको कुछ और नहीं करना है। ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली फॉलो योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जितना स्टॉप लॉस है उसके साथ आप ट्रेड करें, और अपना प्रॉफिटेबिलिटी आपकी डेफिनेटली उस हिसाब से बढ़ेगी मार्केट में, राइट। ट्रेड कम मिलेंगे लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, से यस और नो। सो दिस इज व्हाट यू कैन कीप। ये दो एरियाज आप मार्केट में रख सकते हैं कल के लिए। और तीसरा एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूं दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी दिस लास्ट रिजेक्शन एरिया, राइट। ये तीन एरियाज हैं जिनको आप डेफिनेटली मार्केट में कल वॉच के लिए रख सकते हैं। और किसी भी एरिया में कल मार्केट ट्रेड करती है तो आप उस हिसाब से उसमें अपना ट्रेडिंग डिसीजन बनाइए कि आपको मार्केट में ब्रेकआउट रनअवे वाला ट्रेड लेना है, ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड देन
रनअवे वाला ट्रेड लेना है, या फिर आपको ट्रेड नहीं लेना है, राइट? that type of trading will definitely, as of now data is definitely bearish, but you have to look forward for you have to read it in different perspective and see what kind of trading is happening. यहाँ पर अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो दिस इज व्हाट इट इज लुकिंग लाइक. प्राइसेस पहले सपोर्ट ले रहे थे, फाइनली इस 30 मिनट में प्राइसेस ने रेजिस्टेंस लिया, सॉरी ब्रेकआउट दे दिया, देकर यहां पर प्राइसेस ने फाइनली इस एरिया को अगर 30 मिनट चार्ट में ड्रॉ करें, दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर रेजिस्टेंस नाउ फॉर बैंक निफ्टी. सो मेरे लिए हाईली लाइकली पॉसिबिलिटी यही है, अगर प्राइस यहाँ 30 मिनट के हिसाब से यहां से आके रेजिस्टेंस लेता भी है, डेफिनेटली आई विल बी लुकिंग फॉर टेकिंग अ ट्रेड इन बैंक निफ्टी अकॉर्डिंगली, राइट? लेट्स से अगर इसको प्राइस ब्रेक कर देता है तो ब्रेक करने दो, कोई बात नहीं, दोबारा से रीटेस्ट करता है और तब नया हाई बनाने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टेकिंग अ ट्रेड accordingly. Similarly on the lower level, अब बैंक निफ्टी में अगर 30 मिनट चार्ट में देखेंगे तो आपको यहां पर ये एरिया दिखाई दे रहा है, क्रिस्टल क्लियर है. आई होप ये ड्रॉ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी. यहां पर पहले भी प्राइसेस ने सपोर्ट लिया है. 30 मिनट टाइम फ्रेम इज मच मोर बेटर एंड क्रिस्टल क्लियर इन बैंक निफ्टी इन कंपैरिजन टू लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स, राइट? सो इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल, जब भी आपको ट्रेड करना है, जब भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफाइन करने हो बैंक निफ्टी के, हमेशा 30 मिनट का चार्ट देखें और आपको उससे बहुत अच्छे एरियाज निकल कर आएंगे. नाउ सिमिलरली अगर आप निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी ने भी पहले एक ट्रेंड बनाया, जिस ट्रेंड को निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है, और निफ्टी ने यहां से इस एरिया से भी रिजेक्शन ले लिया है, राइट? सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, जब तक निफ्टी इस एरिया के हाई को ब्रेक नहीं करता वॉल्यूम के साथ, तब तक मैं उसे ट्रेड नहीं करूंगा बाय करने के लिए. yes, I can look forward for taking a trade from resistance here, and then I can expect prices to again come down to lower level. lower level में ये एरिया सपोर्ट नहीं है, जहां पर अभी सपोर्ट लिया है. दिस इज द एरिया, मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्टली कहां पर प्राइसेस को सपोर्ट लेना था. वो था ये अपर एरिया जो पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था निफ्टी में. ये दिस अपर शैडो एरियाज यू कैन मार्क, राइट? सो दिस इज व्हाट यू कैन मार्क. यहां पर निफ्टी पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, नाउ दिस एरिया शुड बी आइडियली एक्टिंग एज अ सपोर्ट. निफ्टी ने लिया सपोर्ट. सो जैसे ही निफ्टी इस एरिया के नीचे 16,900 के नीचे क्लोजिंग दे देगा कोई कैंडल, डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी इस गैप को फिल करने आ जाए, राइट? ये बहुत बड़ा गैप एरिया है, इसको आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर निफ्टी को फिल करने के लिए. सो और हालांकि एक और सपोर्ट है आपका, एक और गैप सपोर्ट है, दैट इज गोइंग टू बी दिस वन, राइट? यहां तक आप लोगों को क्लियर है? निफ्टी के अंदर सपोर्ट एरियाज, सिमिलरली ऑन द अपर एंड मेजर अगर आप देखेंगे सब रेजिस्टेंस एरिया निफ्टी के लिए वो बनता है ये वाला. इनफैक्ट आपको इस कैंडल के यहां तक 17,200 के आसपास का एरिया है जहां पर निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी हाईली लाइकली ले सकता है. ये सब मैक्रो एरियाज हैं जिनको आप डेफिनेटली मार्क करके चलिए, तो आपको एक अच्छा ट्रेड एंट्री मिल सकता है निफ्टी में एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस. सिमिलरली ये एरिया भी है जहां पर निफ्टी ने कंफर्म्ड रेजिस्टेंस दिया है, राइट? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. सो if you want to take a trade in Nifty, do not jump into the market just by looking into the movement of prices. Just simply mark all the support, mark all the resistances. As of now on the daily chart, yes, data is bearish. Data अभी bearish है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे ही डेफिनेटली गिरेगी. दोबारा से मार्केट ऊपर जा भी सकती है. We have to keep our eyes and ears open. Now, this was basically all about related to Nifty and Bank Nifty as of now. Expectation और as per market profile अगर हम देखेंगे निफ्टी में, तो मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से निफ्टी के अंदर मैक्सिमम मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अपना वैल्यू एरिया नीचे की तरफ बनाना शुरू कर दिया है. यानी कि एज पर मार्केट प्रोफाइल ऑफ निफ्टी देयर कैन बी हाईली लाइकली पॉसिबिलिटी, अगर कल मार्केट 16,900 के नीचे रोटेट करना शुरू करे तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि फर्दर लोअर एरियाज यानी 16,700 800 इसके आसपास निफ्टी फर्दर आके फिल करना शुरू कर सकती है, राइट? अपर एरिया में ऑलरेडी रेजिस्टेंसेस अभी इंटैक्ट है निफ्टी में. आप ये मार्केट प्रोफाइल में अगर हम देखेंगे तो ये एरियाज अभी भी इंटैक्ट हैं और ये मेजर
रेजिस्टेंस रहेंगे निफ्टी के लिए, राइट। दूसरा, मार्केट प्रोफाइल अगर हम बैंक निफ्टी का देखेंगे उसके हिसाब से क्या है, यहां पर भी वैल्यू एरिया क्रिएशन नीचे की तरफ हुआ है और अभी तक प्राइसेस ने ऊपर से लगातार रिजेक्शन लिया है। और अगर मेजर एरिया अगर आपको बाय करना भी है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी को पहले ये अपने रेजिस्टेंस एरियाज ब्रेक करने होंगे और उस हिसाब से उसमें ट्रेड लेना बनता है। बट मार्केट पार्टिसिपेंट्स का अगर हम ऑक्शन देखेंगे उसके हिसाब से अभी वैल्यू एरिया क्रिएशन डाउन साइड में ही हुआ है। पहले लगातार ऊपर जा रहा था वैल्यू एरिया, अभी पहली इंस्टेंस में बैंक निफ्टी ने डाउन साइड में अपना अक्यूमुलेशन दिखाया है। सो किसी भी डायरेक्शन में बैंक निफ्टी जाए, ऊपर भी जाए या नीचे भी जाए, डजंट मैटर, हमें सिर्फ ट्रेड लेना है जब बैंक निफ्टी का सपोर्ट या रेजिस्टेंस पहले ब्रेक होगा, तब हम ब्रेक, रीटेस्ट एंड देन एंट्री, राइट। और उसको आपको अगर लाइव देखना है तो वी विल बी डेफिनेटली टेकिंग अ ट्रेड टुमारो एंड यू कैन सिट लाइव विद अस, आप लोग हमारे साथ लाइव बैठ सकते हैं। लिंक आपको हम आपके ग्रुप में भेज देंगे इफ यू आर पार्ट ऑफ आवर ट्रेडर डिस्कशन डेमो ग्रुप, राइट। Now coming down to second topic of the day, that is basically course that we are going to start from first week of January. This is market profile course and इस कोर्स के अंदर हम आपको मार्केट प्रोफाइल क्या होता है, उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं एनालिसिस करने के लिए, मार्केट के डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, वो आपको पढ़ाया जाएगा। सेकंड थिंग इज वॉल्यूम प्रोफाइल से आप कैसे डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करके अपने करेक्ट टॉप नॉच सपोर्ट एरियाज और रेजिस्टेंस एरिया डिफाइन कर सकते हैं। और तीसरा चीज है ऑर्डर फ्लो को यूटिलाइज करके कहां पर आप एंट्री मार्केट में ले सकते हैं, वो सब आपको सिखाया जाएगा, राइट। सो देर आर यस, यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स और जो टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे मार्केट प्रोफाइल कोर्स के अंदर, दैट्स व्हाट वी हैव रिटन हियर. You can definitely go ahead and read them out. Yes, there is a little bit complication in the words, but yes, these are the proper terms and terminologies which are used for market profile. The first one is, first we will be beginning with giving you understanding on what is market profile chart, what are key profile chart elements. We'll be teaching basically three important things, market theories. First one is auction framework, second one is balance and imbalances, and third one is, I think we have not written here, but yes, we will be teaching multiple concepts related to market profile. Along with that, what are different market profile structures, what are trending structure, what are non-trending structure, what can be expected out of trending structure the next day, अगले दिन हमारा क्या expectation हो सकता है related to trending and non-trending structures. Similarly, what are value areas and their relationship as well, different type of market openings and trade setup related to different type of market opening. Market opening ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी open होगा. There are some certain fixed movements in the market which take place, and as per the theory of market profile, you will be learning certain trading strategies which will have much better risk reward ratio compared to any other trading setup, right? That we will be teaching you in this course. Along with that, you will be also identifying where the long-term buyers and long-term sellers are sitting in the market, as per charts, right? So, and apart from that, in the second module, we will be covering what is volume profile and how to read volume profile and how to make them on simple Excel sheet as well, right? Volume, what are different volume profile structure, what is value area relationship, and how to identify important demand and supply zone for as per volume profile. That's what you will be learning. And once you have learned what is market profile and volume profile and how to utilize them for trading, we will be then working upon giving you understanding on what is order flow and how to use order flow for making a right entry at right point of time. So order flow is nothing but a simple trade book, you can say, of market, which makes market completely transparent and shows you crystal clear that where the big buyers or big sellers are sitting in the market. It is basically a crystal clear register showing you where big buyer is buying, where big seller is selling, right? And using this order flow, we will be teaching you how to take the trade and how to read those charts as well, right? And we have different I have created so many strategies related to market profile, volume profile, and order flow, and I'll be teaching you all the strategies in this course right after giving you understanding on what is market profile, volume profile, and order flow. And after that,
it is not just that. We will also be, after giving you understanding on all these things, we'll be teaching you all the trading strategies. After that, we will also be covering trading psychology lectures, and we'll also be teaching you on live basis, how to do scalping in Nifty and Bank Nifty options, right? So those who are interested, they can, definitely go ahead and read about it. I will send the link. I hope, how many of you have seen the link? This link we have already posted in our channels number of times. If you have seen that, definitely go ahead and watch them. There are so many people who have got benefit out of joining this course and getting good earnings out of stock market, right? So I won't be calling their names, मैं उनके नाम नहीं बोलूंगा, but yes, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा, इनफैक्ट some of my students, they left their job and they have become a full-time trader now. So yes, earnings can be made from stock market, right? So we won't be, if you have got like Surinder ji, I have seen sir, yes. So ऐसे हैं, बहुत लोग हैं जो अपना जॉब छोड़ के एक्चुअली फुल टाइम ट्रेडर बन गए हैं आफ्टर गेटिंग देयर इनकम सस्टेनेबल. जब उनकी इनकम सस्टेनेबल हो गई, तो उसके बाद उन्होंने अपना जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडर बन गए. सो मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप भी फुल टाइम ट्रेडर बनिए. मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि प्रॉपर नॉलेज अगर आपके पास है, तो आप कंसिस्टेंटली स्टॉक मार्केट से अर्निंग कर सकते हैं. सिर्फ आपकी चार्ट रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका माइंड सही जगह पर होना चाहिए, दैट्स ऑल. और कहां पर होना चाहिए आपका माइंड, उसके लिए हम गाइडेंस में बैठे हैं आपके लिए, राइट? So that's all we can say. Now let's come down to the third topic of the day. That is defining a simple strategy for Bank Nifty. And वो strategy से पहले आपको 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जिसको आप हमेशा अप्लाई करिए. How many of you have got trading view account, या फिर आप लोगों के पास investing का account हो? Let me also open investing.com. सुरेंद्र जी बोल रहे हैं मुझे भी फुल टाइम ट्रेडर ही बनना है. आपने ज्वाइन कर लिया है ना सर कोर्स? सुरेंद्र जी, यू आर ज्वाइनिंग दिस 7th of January से हम स्टार्ट कर रहे हैं. यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड ना सर? मैंने आपको पहले ही बोला है सुरेंद्र जी, यू डू ऑल द हार्ड वर्क. I will work upon giving you as much knowledge as possible, and you have to do as much hard work as possible. Vinay has also joined. Yes, Vinay. Yes, you have also joined. So yes, so those who have already enrolled and watching this webinar, guys, I'll give you as much understanding related to the market as possible. But I want you also to do as much hard work as possible. आपका hard work है वो आप ही को result ला कर देगा, मुझे कोई result नहीं ला कर देगा वो, right? So I want you all to do as much hard work as possible. I'll be giving you a lot of homework. I'll be giving you a lot of insights related to market, but at the day end, it is you who have to do the hard work. You are already investing your time and money in learning, so just make sure that you are utilizing your time and money effectively. All right, so now guys, let me know how many of you have got either Fire's account, or you have got trading view account of Zerodha, or you have got investing.com. I'll just give you a simple trade setup which you can utilize for yourself while doing trading, right? So first one is, आप कोई भी अगर आपके पास नहीं भी है, तो what you can do, you can also visit a simple website. Let me just open trading view, राइट? आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में जाइए. ट्रेडिंग व्यू में भी आपको फ्री अकाउंट मिल जाता है. सिमिलरली investing.com इज ऑल्सो देयर. यहाँ पर भी आप फ्री अकाउंट अपना बना सकते हैं. थर्ड वन इज फायर्स में आप इट इज अ ट्रेडिंग टर्मिनल, इट इज नेम ऑफ अ ब्रोकर. डेफिनेटली यू कैन ओपन योर अकाउंट विद देम, एंड डेफिनेटली you'll be getting this kind of trade setup. If you already have got Zerodha account, वहां पर भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, वहां पर भी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स आपको मिलेंगे. Now, why trading view charts are really good in terms of doing analysis? Let me show you something, right? So what you have to do is, यहाँ पर आप layout select करिए. What kind of layout will be preferable? You can select this type of layout. One big chart, or total 3 charts you want to see in your panel in one go.
3 चार्ट्स आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए। एट मैक्स अगर आपको रखने हैं तो 4 चार्ट्स आप यहां पर ओपन रखिए, जस्ट लाइक दिस। 4 चार्ट्स यू कैन कीप योर चार्ट्स ओपन जस्ट लाइक दिस। एंड यहां पर अब आपको करना क्या क्या है इसके अलावा, पहले आपने यहां से गए और आपने लेआउट आपने सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब उसके बाद आपको साथ में क्या क्या चीजें इंश्योर करनी है, सिंक्रोनाइजेशन को आपको इंश्योर करना है। वन थिंग इज ड्राइंग शुड बी सिंक्रोनाइज्ड। Second thing is crosshair. If you do not want crosshair to synchronize, that is also fine. And if you want to, synchronize, crosshair, तो वो आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तीसरा चीज है सिंबल। सिंबल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिंबल को अगर आप सिंक्रोनाइज करते हैं तो इसका मतलब ये है, अगर आप यहां पर किसी भी सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको वो सारी सिक्योरिटी यहां पर ऐसे खुल के दिखना शुरू हो जाएगी, राइट। एंड लेट मी डू वन थिंग, इससे इंडिकेटर सारे हटा देता हूं। आई थिंक यहाँ पर वीवैप वगैरह सब दिखाई दे रहा है। लेट मी जस्ट डिलीट all drawings and indicators. Similarly here also delete all drawing and indicator. Similarly here also delete all drawing and indicator, right। और इस लेआउट को आपने जब बना दिया तो अब आपको यहां पर करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है। पहले चार्ट को आप यहां से इसका टाइम फ्रेम चेंज करके यू मेक इट अ डेली चार्ट। इफ यू वांट टू सी फर्दर हायर टाइम फ्रेम देन यू कैन कीप इट 1 मंथ चार्ट, राइट। बट इस 1 मंथ चार्ट को आप जनरली नहीं देखोगे, तो इसीलिए मैं यही रेकमेंड करता हूं। आई ऑल्सो रेकमेंड, बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 1 मंथ चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। यू कैन ओनली कीप डेली चार्ट ओपन, देन आफ्टर दैट you can keep 30-minute chart open, then you can keep 5-minute chart open, right? So I'll just keep it open like this. 30-minute आपका चार्ट यहां पर बन गया, और इसमें तीसरे वाले जगह पर आप चेंज करके you make it 15-minute, and then here also you make it 5-minute, right? ये 5-minute ऑलरेडी है। Now अब इससे आपको फायदा क्या मिल रहा है? फायदा आपको ये मिलेगा सर कि अब आप कोई भी सिक्योरिटी में आप क्लिक करेंगे तो आपको उसका डेली चार्ट में क्या चल रहा है, 30-minute चार्ट में क्या चल रहा है, 15-minute चार्ट में क्या चल रहा है और 5-minute चार्ट में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें आपको एक ही मैक्रो व्यू में मिल जाएंगी। दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेटअप आई फॉलो द मोस्ट, राइट, because I want to see, this is my preference as an intraday trader, I want to see that what is happening in higher time frame and what is happening in the lower and lower time frames, right? So this is always preferable. If you are following this type of trading setup, then your decision making will be comparatively better. You will definitely be carrying extra edge over others. कभी कभी आपको देखने को मिलेगा डेली टाइम फ्रेम में, यहां पर ये स्टॉक डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये एरिया है 1797 का एरिया है, जो आपको डेली चार्ट में दिखाई दे रहा है, क्रिस्टल क्लियर सपोर्ट एरिया है। और यहां पर अगर आप 30-minute टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो इस एरिया से पहले ब्रेकआउट आया, और यहां पर रैली ब्रेकआउट कैंडल कौन सी है, ये कैंडल है। सो अब मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछूंगा, इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के यहां पर लो और एवरेज प्राइस पर, आई एम सॉरी, इस कैंडल के यहां पर ऑल्ट एच, सॉरी, कैंडल के लो पर, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, यहां से आई थिंक ये लाइन नहीं ड्रॉ हो रही है, लेट मी सी, ऑल्ट एच, यहां से यहां तक ये एरिया मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, क्योंकि यहां पर कैंडल का ब्रेकआउट आया, प्राइस ने यहां पर रीटेस्ट किया एंड देन फाइनली प्राइस ऊपर चला गया। अब इसी एरिया को अगर मैं फाइनली देखता हूं और आज के दिन अगर मुझे ट्रेड लेना है तो क्या मेरे लिए ये एरिया होगा अच्छा कि मुझे यहां पर ट्रेड लेना चाहिए, मुझे यहां पर शॉर्टिंग का? लेट्स से अगर मुझे इसमें दिख रहा है बहुत बड़ी सेलिंग आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो इस एरिया में क्या मुझे ट्रेड लेना चाहिए 5-minute टाइम फ्रेम में भी? बताइए। बताइए गाइस, let me know, should I look forward for taking a trade? राइट, यस, हाँ। सो वही चीज है, यहां पर ये सपोर्ट जोन है, और इस सपोर्ट जोन से पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि प्राइस इसको नीचे ब्रेक कर दे, और वो सपोर्ट जोन कहां से कहां तक है,
यहां से लेके यहां तक, ऑलवेज रिमेंबर इट इज नॉट इन स्टॉक मार्केट, इट इज नेवर अ प्रॉपर पिन पॉइंटेड पॉइंट कि जहां से आपको सपोर्ट वो लेवल ब्रेक करा तो भागेगा. इट इज नॉट जस्ट वन सिंगल लेवल, इट इज ऑलवेज अ प्रॉपर रफली जोन, राइट. एक हमेशा स्टॉक मार्केट में सपोर्ट जोन्स होते हैं, दे आर नेवर लेवल्स, राइट. सिमिलरली अगर आप यहां पर अपर लेवल में भी देखेंगे, ये एरिया था, यहां से प्राइसेस ने रिजेक्शन लेना शुरू किया, तो आप अगर ऑल्ट एच यहां पर मैं डिफाइन करता हूं, यहां से लेके यहां तक, तो प्राइस ने लगभग इसी एरिया के आसपास से ही आपका रिजेक्शन लिया एंड देन फाइनली स्टार्टेड कमिंग डाउन. इनफैक्ट किसी दिन अगर ऊपर खुल भी गया तो वापस से प्राइसेस ने उसको अपनी रियल वैल्यू पर फिर दोबारा से पहुंचा दिया, राइट. दैट्स हाउ इट इज, राइट. कभी भी आपको कोई भी स्टॉक को अगर एनालाइज करना है तो आप उसमें पहला स्टेप आपका ये बनता है, ऑलवेज लुक इनटू मैक्रो टाइम फ्रेम and also look into its micro time frame as well, especially when you are doing intraday trading. Mark support and resistances on the daily chart, mark support and resistances as per 30-minute chart, mark support and resistances as per 15-minute chart, and then look forward for taking entries in 5-minute charts accordingly, right. Let me give you a simple analysis and entry as per in the last trading session. Give me any stock, I'll add that stock, और उसके अंदर मैं आपको एंट्री दिखा देता हूं कैसे बनती है और कैसे उसी सिंपल से सेटअप को आप यूज करके आप ट्रेड कर सकते हैं. गिव मी एनी सिक्योरिटी एंड दिस इज व्हाट यू विल बी, आपके सामने ही करूंगा. देयर विल नॉट बी एनी हिडन थिंग. एनीवन who wish to give me any stock here, कोई भी स्टॉक आप बोलिए. BPCL, Vinay is saying, all right, I'll simply add here BPCL. Any other stock? एक और स्टॉक बोलिए तो उसके बाद उसको भी हम डालेंगे. Apart from that, any other stock is there? रिलायंस एंड देन PNB अब आ रहे हैं. हाँ, बहुत अच्छी बात है. सो जब एक स्टॉक के लिए बोला तब किसी ने नहीं बोला. सो एनीवेज आई विल जस्ट सिंपली ऐड रिलायंस इंडस्ट्रीज. दैट्स ऑल. ये दो स्टॉक फिलहाल अभी डालते हैं. लेट्स हैव अ लुक इनटू BPCL. BPCL को डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले जाकर देखेंगे इसका नियर बाय सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां से रिवर्सल ले रहा है. लास्ट रिवर्सल पॉइंट अगर मैं BPCL का यहां से मैक्सिमाइज कर देता हूं इस चार्ट को, अगर मुझे कहीं पर भी दिक्कत आती है बॉटम से मैक्सिमाइज करना है, ये एरिया है, यहां से प्राइसेस ने पहले कंफर्म्ड सपोर्ट लिया था, तो ये दो लाइन मुझे सबसे पहले मार्क करना जरूरी है. दूसरा एरिया कहां से प्राइसेस ने सपोर्ट लिया है, दैट इज गोइंग टू बी दिस वन. ये लोअर एरिया, ये मेरा हो गया डिफाइंड, राइट. दिस मच पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ उसके अलावा अब मुझे क्या करना है, ये गैप एरिया मुझे चेक करना है. इस गैप एरिया में किस टाइप का मूवमेंट हो रहा है. एक लो बनाया था, देन हाई बनाया था, देन उसके बाद प्राइसेस ने यहां पर एक सर्टेन लो बनाया, बट दिस वाज द सेम लो, then lower high, and then finally prices started making lower lows. So what I can do now, एक ट्रेंड मुझे यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है. So what I can do, I can connect all the highs of the stock, right, somewhat like this, right. ये एक लास्ट हाई को कनेक्ट करके मैंने बनाया है. सिमिलरली अब इस ड्राइंग को अब मैं क्या करूंगा, क्लोन करूंगा और इसका एक फर्दर ड्रैग करके यहां तक ले आऊंगा. Why I have done that? Because ये डेविएशन है, इस ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद का डेविएशन है, राइट. सो दिस इज द मैक्सिमम अपर डेविएशन ऑफ द स्टॉक, राइट. नाउ व्हाट आई कैन डू नाउ, लोअर एरिया में अगर देखेंगे इसका अप ट्रेंड में, डेली चार्ट्स में अगर हमने देखा है तो अप ट्रेंड में ये बेसिकली नहीं है. दिस इज बेसिकली रनिंग इन अ डाउन ट्रेंड ओनली, राइट, बिकॉज प्राइसेस आर मेकिंग हियर this was high, low, lower high, lower low, then another lower high, then another lower low made by the prices. So what should I expect out of it? That prices, the moment it is reaching near this area, I should expect prices to again take resistance and then again start coming in the downward direction only. So पहला व्यू तो डेली चार्ट में मुझे क्लियर हो गया that this is definitely going to be a BPCL के लिए ये मेरे लिए डेफिनेटली एक रिजेक्शन एरिया है और यहां पर मुझे ट्रेड मिलने का पोटेंशियल है.
नाउ आई विल डू वन थिंग, डेली चार्ट में सब लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली, आई विल सिंपली ओपन इट्स 30 मिनट चार्ट नाउ एंड आई विल सी व्हाट इज हैपनिंग इन 30 मिनट चार्ट। नाउ 30 मिनट चार्ट के अंदर मुझे ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, दैट आई कैन डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड फॉर शॉर्ट पोजीशन। व्हाई नॉट, आई शुड आल्सो मेक अ सिंपल ट्रेंड लाइन। ये मेरा पहला ट्रेंड लाइन भी हो गया रेडी। राइट और रॉन्ग सर? एम आई डूइंग एनीथिंग रॉन्ग हेयर? कुछ गलती हो रही हो तो बता देना सर। And this area I will also be marking, which can highly likely act as resistance. ठीक है, समझ में आ रहा है? Support, breakout, retest, and then again break off this higher time frame, right? After that, what I will be doing, I'll be making its 15-minute chart, maximizing it, and I will be seeing what is happening in the first 15-minute chart. अब आप बताइए सर, पिछले दिन में 5 मिनट टाइम फ्रेम के रिवर्सल लेवल आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका 5 मिनट टाइम फ्रेम भी खोलकर देख सकते हैं, राइट? नाउ लेट मी नो which point will be good point for you since morning, which point will be good point for you to take entry in BPCL? गायक हैज डन अ गुड जॉब। गायक, लेकिन बस एक मूविंग एवरेजेस को हटा दो, बाकी सब ठीक है। गायक, बट गायक ठीक है, डजंट मैटर, आई रिस्पेक्ट दैट व्हाट यू हैव डन गायक। I'll do one thing, I'll show it to others also. So this is what Gayak has done. So this is for Nifty Bank. Acha, for Nifty Bank he has done the study. Good. So anyways, यहाँ पर आप बताइए guys, which candle, let me just write down the candle names and then you can let me know कौन सी कैंडल में आपको लगता है कि एंट्री बनती है मार्केट में। दिस इज कैंडल नंबर 1, this is candle number, and I'll give you the reasons also. My entry I can tell you, candle number 2, this small green candle is candle number 3, and this candle will be candle number 4, then this candle will be candle number 5, and this candle number will be candle number 6. Let me tell you, इसके आगे मैं नहीं बना रहा हूं, इन्हीं 6 कैंडल में से कहीं एक आपका प्रॉपर कैंडल बन रहा है। Tell me guys, which candle do you think? Look at the chart as closely as possible. Let me know which candle is the entry candle. Okay, Rajiv ji is saying it is candle number 4. Anyone else? Surendra ji is saying candle number 8. All right. Candle number, let me just write it down separately. यहां पर लिख देता हूं, candle number 4 आपने बोला है, candle number 8 and I just joined, don't know what was discussing. We were discussing about a simple trading setup by taking a trade using support and resistances. For that, we first discussed that we have to mark all the support and resistances as per daily chart. Then we have to mark as per 30-minute chart. Then we also have to see the further lower time frame charts and then take the and mark the entry points accordingly. Simple. Bataiye sir. Anyone, any other candle if you have in mind? 8, 4, 3, 2, 1. Okay, Vinay is saying first candle. All right, candle number 1 also. Let me tell you, आप में से कितने लोगों ने रीजन सोचा है इसमें? आई हैव अ क्रिस्टल क्लियर। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग दिया था, ब्रेक, रीटेस्ट एंड देन एंट्री। ये सिंपल सा लॉजिक आपको समझ में आ रहा था गाइस? ब्रेक, रीटेस्ट एंड एंट्री। आ रहा था या नहीं आ रहा था? गाइस प्लीज आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो अब आप यहां पर देखिए,
दिस इज अ डायनेमिक ट्रेंड लाइन, राइट, जहां से प्राइसेस हिस्टोरिकली लगातार 30 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट ले रहे थे. नाउ द प्राइसेस हैव ओपनड in the gap resistance area. This is gap resistance, and after opening in this gap resistance, prices have swiftly moved down and they have given a closing below the trend line. That means trend line has got broken in candle number 1. Right or wrong? Right? कैंडल नंबर 2 के अंदर हुआ क्या है? प्राइसेस हैव रीटेस्टेड, मूव्ड अप. कैंडल नंबर 3 के अंदर दोबारा से कोशिश करा नीचे जाने का, बट अगेन मूव्ड अप. कैंडल नंबर 3 के अंदर फाइनली प्राइसेस हैव broken and made a new low. Don't you think if I create a position of selling below candle number 4, this red candle, इस कैंडल के नीचे मैं अपना सेल पोजीशन बनाता हूं, that means my entry should ideally come in candle number 5, right? यानी कि इस कैंडल नंबर 5 में अगर मैं अपना शॉर्ट पोजीशन बनाता हूं और इतने का रिस्क रखता हूं, 376 का रिस्क रखता हूं, आई हैव गॉट अ रिस्क ऑफ ओनली 2 रुपी per share. 2 rupee per share is my risk. What should be my reward? My reward should come exactly at 372. That means when this candle arrived, that means within next how many minutes? 5, 10, 15, 20, 25. Within next 25 minutes, my risk reward ratio of 1:1 achieved. बट उसके लिए पीछे की बैकएंड की मेहनत कितनी थी? लॉन्ग या शॉर्ट एंट्री? सर साफ साफ शॉर्ट ही बनती है इसमें. अच्छा, सुरेंद्र जी सेइंग कि सर लॉन्ग या शॉर्ट नहीं बताया आपने. सर मार्केट सिनेरियो देखिए ना, मार्केट लगातार गिर रही है, आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए या शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए? थिंक अबाउट इट. और जबकि हमने कल लॉन्ग एंट्री आपको दी थी, हैव अ लुक इनटू टेक महिंद्रा. हमने आपको एक स्टॉक दिया था कल, टेक महिंद्रा. हैव अ लुक इनटू दिस स्टॉक. और उसके बाद आप मुझे बताइए, ये स्टॉक है डेली चार्ट में, इसने प्रीवियस डे का हाई 1690 इसने ब्रेक कर दिया है, राइट? 1690. एंड हमने अपने चैनल में किस लेवल के ऊपर बाय करने के लिए बोला था आपको? इफ यू ऑल रिमेंबर, वी गेव यू टेक महिंद्रा to buy it above 1704. We wanted to be extra sure about this. We had already seen Tech Mahindra that it has gone above 1690 level. अब हमें क्या देखना है? लोअर टाइम फ्रेम में हमें सिंपल सी चीज है, ये देखना है हमें कि रीटेस्ट करने के बाद ये दोबारा से नया हाई बनाता है तो जाता है या नहीं जाता है. लेट्स हैव अ लुक इनटू इट्स रीटेस्टिंग पॉइंट. If we read the retesting point properly, then definitely we can make good money also. Intraday में अगर आप चार्ट देखेंगे, ये हमारा 5 मिनट चार्ट है. So this is what it is showing. ये पिछले दिन का हाई है, इसके आगे पूरा unexplored territory है. There is no nearby resistance available in the stock. So what prices are doing? Prices ऊपर गए, retest किया, another high बनाया. तो do you think that it is logical for us to look forward for बाइंग दिस स्टॉक अबव दिस पॉइंट? जब इसने नया हाई बनाया, इस कैंडल के हाई के ऊपर जब भी जाएगा, हम इसको बाय कर सकते हैं या नहीं? लेट मी नो. आपको जूम करना है, मैं जूम करके दिखा देता हूं चार्ट. राइट, गिरती हुई मार्केट में हमने आपको बाय करने का स्टॉक दिया था कल, जिसमें प्राइस ने ब्रेक किया है, रीटेस्ट किया है, अनदर हाई बना दिया है. इस हाई के ऊपर हम बोल रहे हैं अनचार्टेड टेरिटरी है एंड यू आर गुड टू बाय अबव इट. एंड 1695 का यहां का स्टॉप लॉस हमने थोड़ा सा डिफाइन किया था कि इस लेवल के नीचे जाएगा तो आप एग्जिट कर सकते हैं लॉस के साथ, अदरवाइज यू आर गुड टू कीप ऑन होल्डिंग एज पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. एंड हमें नहीं मालूम ये स्टॉक और ऊपर कितना जाएगा, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली अनचार्टेड टेरिटरी फॉर
Tech Mahindra, and it is definitely going to keep on moving up and up, but we don't know when it is going to take rejection. So as per the analysis, it was definitely good to buy above it, and it is crystal clear. This is the breakout candle, break, and this one is a retest candle. Retest में again buyers were back, and definitely what we have to do, second retest, upper, higher lows, upper, and finally this is your entry point where it is coming. We still gave you further little bit higher level, that was I think 1704 or something. That's where we told you prices again retested, and finally gradually prices just simply kept on moving up and up, and uske baad there was no looking back, just gave a rally up till 1735 or something. So that was the stock. क्या एंट्री लेना मुश्किल है? Do you think it is difficult to take entry? It is not difficult, sir. It is just that you have to be selective in your analysis. You have to be very much selective in your analysis, and if your analysis is right, you will definitely get the profit. प्रॉब्लम कम्स जब ये शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक आपके लॉस टेरिटरी में चल रहा है, यहां पर होता है मैक्सिमम लोगों को पैनिक. दिस इज योर पैनिक बटन. ओ माय गॉड, आई विल बी गेटिंग द लॉसेस. ओ माय गॉड, राइट आफ्टर टेकिंग एंट्री आई हैव स्टार्टेड गेटिंग द लॉसेस. दैट्स द पैनिक बटन. और वो कितनी देर का पैनिक है? 5, 10, 15, 20, roughly good about 25 minutes panic point. And if you see the chart clearly, तो प्राइस हमारे एंट्री प्राइस के आसपास ही काफी देर तक रहा है. इनफैक्ट फ्रॉम गुड अबाउट 11:30 से लेकर 1 बजे तक प्राइस हमारे एरिया के आसपास ही हॉवर करता रहा है, बट नीचे नहीं गिर रहा है. इतनी देर तक का पेशेंस अगर आप में है तो आपको इंट्राडे में फाइनली रिटर्न भी सर बहुत अच्छा मिल जाएगा. दैट्स हाउ इट इज सर इन स्टॉक मार्केट. prices will show you, your mind, prices will show you the opportunity, but your mind is not ready to accept the opportunity. So if you are ready to accept it, you'll definitely get the benefit out of it. So that's all about it, guys. Yahi hai simple sa strategy. Look into a bigger time frame, start looking into smaller time frame, mark all the support resistance, take the trade as per break, रीटेस्ट एंड देन एंट्री. अब आप मुझे बताइए, सिंपल सा सवाल है आप लोगों के लिए, डू यू नीड एनी इंडिकेटर ट्रेडिंग फॉर इट? क्या आपको इसमें कोई इंडिकेटर चाहिए? सिंपल सवाल. राइट. सो जब नहीं चाहिए तो हम नहीं लगा रहे. many people they look into indicator type of trading only, right? There are so many course providers, and they will be packaging their courses in a manner that they will be showing that become consistent and big profit earner, but ultimately results you will be finding yourself to be still running into losses only. Here at Elixir Learnings, we focus to give you consistent earning by sitting live with you in the market and giving you and helping you on live basis whether your analysis is running in the right direction or not. If your analysis is right, you'll definitely get the profit. If your entry in the market is logical, then definitely you'll start getting profits. So as simple as that, sir. So with that in mind, guys, I'll not take much time of yours today. This is already 1 hour. So इस टाइप का सेटअप आप ट्राई करिए, कल ट्राई करिए, परसों ट्राई करिए. लेट मी नो विद इन 1 वीक. when next week हम दोबारा से मिलेंगे 5 to 6 p.m. next week will be it will be 2nd of January 2022, right? It will be 2nd of January 2022. Let me know if you have taken all the entries logically and what was your result out of it. कितनी ट्रेड आपकी लॉस मेकिंग रही, कितनी ट्रेड आपकी प्रॉफिट मेकिंग रही. Let me know on this part, and I'll be happy to help you on this part. Okay.
So those who want to enroll for our next course, the course is starting from 7th of January. Those who are interested in joining it, they can contact us on this, they can drop us WhatsApp message on this number. I'm just writing down the number. So this is the number, you can write it down, guys. 8851469399. So simply drop us WhatsApp message by the name of, simply drop us this message: market profile course, and our team, our representatives will contact you, they will call you, and they'll give you the complete explanation on what we are going to teach in this course, and what are all the services, what are all the benefits that we'll be getting from this course. Class timings will be from 9 p.m. to 10 p.m. on daily basis. Saturday and Sunday will be off, 9 to 10 p.m. Okay, Vinay, clear? 9 to 10 p.m. will be the class timings. Will that be fine for everyone? Yes. Okay. So that's all from my side, guys, for today. Thank you for giving your time and listening to me patiently. And let me know what kind of profitability you get in the in finding the stocks, and marking your entries and getting the rewards accordingly by next week. Okay. Take care. Bye bye. Have a lovely weekend.